معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئے سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے کرونا وائرس کے باعث حج کے نئے SOPs جاری کر دیے۔ عرب حکمران اپنی حکومتوں کی بقا کے لیے امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں۔ حماس۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کی غزہ پر ایک بار پھر بمباری۔ نامعلوم طیاروں نے لیبیا میں ترکی کے ایئر ڈیفنس نظام کو تباہ کر دیا۔ یمن میں خانہ جنگی کی صورتحال سے ہر جگہ تباہی و بربادی کے اثرات۔ اقوام متحدہ نے یمن میں بھوک مری کا دیا انتباہ۔ کورونا پھیل رہا ہے، سائنسدانوں کے انکشاف نے دنیا کو چکرا دیا۔ LAC پر ہندوستانی فضائیہ نے بڑھائی طاقت، چین سے متصل سرحد پر نظر رکھ رہے جنگی طیارے۔ جے شری رام نعرے نہ لگانے پر 9 مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ وہ تو خیر ہے کہ وکاس دوبے کوئی سلیم اور ندیم نہیں ہے۔ مفتی احمد نادر قاسمی۔ یہ گھر ان کے والد کا تھا، آپ چاہتے تو ان کے جائیداد کو تباہ کر سکتے تھے۔ شیٹر ڈبے کی والدہ کا اظہار خیال۔ ایک ہفتے میں 50 لوگوں کا قتل، کون ہے ذمہ دار؟ پرینکا کا یوگی سے سوال۔ کانپور انکاؤنٹر میں یوگی آدتیہ ناتھ کی ٹھوک دیں گے پالیسی ذمہ دار۔ آندھرا پردیش میں بے گھر افراد کے لیے اراضی کے پٹے دینے کا پروگرام ملتوی۔ کورونا وائرس کے بڑھتے مریض اہم وجہ، 15 اگست کو دینے کا اعلان۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے مریضوں میں زبردست اضافہ، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1322 نئے مصدقہ مریض، تعداد بڑھ کر 20,019 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وائس جگن موہن ریڈی کا ضلع کڑپے کا 2 روزہ دورہ۔ ضلع SP کڑپا KKN انبو راجن نے آج اپنے دفتر سے اسپندنا پروگرام کا بذریعے ویڈیو کانفرنس انعقاد کیا، شکایت کنندگان سے راست بات چیت کی۔ ضلع کڑپا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 96 نئے مریض مصدقہ، تعداد بڑھ کر 1480 ہو گئی۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے کرونا وائرس کے باعث حج کے نئے SOPs جاری کر دیے۔ سعودی حکومت نے کرونا وائرس وبا کے باعث حج کے لیے نئے SOPs جاری کر دیے ہیں۔ سعودی عرب نے کرونا وائرس کے باعث حج کے نئے پروٹوکول جاری کر دیے، جس کے تحت حجر اسود کو چھونے پر پابندی ہوگی اور ماسک بھی پہننا لازمی ہوگا، جبکہ نماز و طواف کے دوران کعبے کو چھونا منع ہوگا۔ 19 مئی سے منی، مزدلفہ اور عرفات میں بغیر اجازت نامے کے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مختلف زبانوں میں کورونا کے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر لگائی جائیں گی۔ عرب حکمران اپنی حکومتوں کی بقا کے لیے امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں۔ حماس۔ فلسطین کی تنظیم حماس کے سیاسی شعبے کے رکن نے اعلان کیا ہے کہ مغربی پٹی کے بعض علاقوں کے اسرائیل کے ساتھ الحاق سے فلسطینی حکومت کا عملی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ ابلاغ نیوز نے القدس کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ فلسطین کی تنظیم حماس کے سیاسی شعبے کے رکن موسیٰ ابو مرزوق نے اعلان کیا ہے کہ مغربی پٹی کے بعض علاقوں کے اسرائیل کے ساتھ الحاق سے فلسطینی حکومت کا عملی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ فلسطینی رہنما نے کہا کہ اسرائیل کے گھناؤنے منصوبے کے نتیجے میں مغربی پٹی 7 جداگانہ علاقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کی غزہ پر ایک بار پھر بمباری۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے کل رات غزہ پٹی پر بمباری کی۔ ابلاغ نیوز کے مطابق قدس کی غاصب اور جابر
صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کی جانب سے کل رات غزہ پٹی کے الزیتون علاقے پر ہونے والے حملے میں جانی اور مالی نقصان کی رپورٹ تاحال سامنے نہیں آئی ہے۔ غزہ پٹی پر حملہ ایسے میں ہوا کہ صہیونی حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ غزہ سے مقبوضہ علاقوں پر کئی راکٹ داغے گئے۔ نامعلوم طیاروں نے لیبیا میں ترکی کے ایئر ڈیفنس نظام کو تباہ کر دیا۔ امریکہ کے یوم آزادی پر امریکی سماج کا ایک پہلو۔ افریقی مسلم ملک لیبیا میں نامعلوم جنگی طیاروں نے الوطیہ میں واقع ایئر بیس پر حملہ کر کے ترکی کے ایئر ڈیفنس نظام کو تباہ کر دیا۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ لیبیا کی حکومت GNA نے ترکی کی عسکری مدد سے جنوبی فورسز سے کنٹرول واپس حاصل کیا تھا۔ یمن میں خانہ جنگی کی صورتحال سے ہر جگہ تباہی و بربادی کے اثرات۔ اقوام متحدہ نے یمن میں بھوک مری کا دیا انتباہ۔ اقوام متحدہ نے یمن کی موجودہ صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر بین الاقوامی امداد میں فوری اضافہ نہ کیا گیا تو لاکھوں یمنی بچے موت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ 5 برسوں سے جاری خانہ جنگی کی وجہ سے یمن کو دنیا کے سب سے بڑے انسانی بحران کا سامنا تو تھا ہی، لیکن اب کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے بے شمار لوگوں کی زندگیوں کو مزید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ یہ مناظر دیکھ کر آپ بھی آپ دیدہ ہو سکتے ہیں۔ کرونا پھیل رہا ہے، سائنسدانوں کے انکشاف نے دنیا کو چکرا دیا۔ 6 ماہ گزرنے کے باوجود ماہرین درست تشخیص میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہے ہیں۔ کرونا وائرس ہوا سے پھیل رہا ہے، یہ دعویٰ 12 ملکوں کے 239 سائنسدانوں نے عالمی ادارے صحت کے نام ایک خط میں کیا ہے۔ اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ یہ وائرس کھانسنے یا چھینکنے یا زور سے بولنے سے مریض سے منہ یا ناک سے خارج ہونے والے باریک محلول ذرات سے یہ وائرس دوسرے شخص کو شکار کرتا ہے، مگر اب 12 ملکوں کے 239 سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ وائرس ہوا کے ذریعے انفیکشن پھیلاتا ہے اور بند جگہوں پر بھی اس سے بچنے کے لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اس سے قبل سائنسدان یہ دعویٰ بھی کر چکے ہیں کہ یہ وائرس نہیں، در حقیقت بیکٹیریا ہے۔ تاہم 6 ماہ گزرنے کے باوجود سائنسدان ابھی تک اس کی مکمل تشخیص کرنے میں ناکام ہیں اور دنیا بھر کے ماہرین تکوں سے ہی کام چلا رہے ہیں۔ LAC پر ہندوستانی فضائیہ نے بڑھائی طاقت، چین سے متصل سرحد پر نظر رکھ رہے جنگی طیارے۔ ہندوستانی فضائیہ نے ہندوستان کی فوجی تیاریوں کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کئی ایڈوانس اڈے تک بھاری فوجی آلات اور ہتھیار پہنچانے کے لیے C-17 گلوب ماسٹر 3 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ اور C-130J سپر ہرکیولس کے بیڑے کو لگایا ہے۔ مشرقی لداخ کے گلوان وادی میں ہندوستان اور چین کی افواج کے درمیان بڑھتی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے ہندوستانی فضائیہ انڈین ایئر فورس نے اصل کنٹرول لائن LAC کے پاس اپنے سبھی اہم مراکز پر فرنٹ لائن جنگی طیاروں، ہیلی کاپٹروں اور ٹرانسپورٹ بیڑے کی تعیناتی بڑھا رہی ہے۔ ہندوستانی فضائیہ نے ہندوستان کی فوجی تیاریوں کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کئی ایڈوانس اڈے تک بھاری فوجی آلات اور ہتھیار پہنچانے کے لیے C-17 گلوب ماسٹر 3 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ اور C-130J سپر ہرکیولس کے بیڑے کو لگایا ہے۔ جے شری رام نعرے نہ لگانے پر 9 مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ رواں سال بھارتی دارالحکومت دہلی میں ہوئے مسلم کش فسادات کی چارج شیٹ پولیس نے عدالت میں جمع کرا دی ہے، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ انتہا پسند ہندوؤں نے جے شری رام کے نعرے نہ لگانے پر مسلمانوں پر حملہ کر کے 9 افراد کو قتل کر دیا تھا۔
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल किए गए 9 अफराद में से एक हमजा के कत्ल के सिलसिले में गोकालपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR की चार्जशीट पर पुलिस ने कहा कि दिल्ली में फसादात के दूसरे दिन 25 फरवरी को कट्टर हिंदू एकता के नाम से इंतहा पसंद हिंदुओं ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। दिल्ली पुलिस की जानिब से अदालत में जमा कराई गई चार्जशीट में पुलिस ने इंकशाफ किया कि व्हाट्सएप पर एक दूसरे से राब्ते में मौजूद उन इंतहा पसंद हिंदुओं से मुसलमानों पर हमला करने का कहा गया और एक दूसरे को लोग हथियार और गोला बारूद फराहम करने का कहा गया। वो तो खैर है कि विकास दुबे कोई सलीम और नदीम नहीं है। मुफ्ती अहमद नादिर कासमी। आज मुल्क के 8 पुलिस एहलकार के एक आतंकी विकास दुबे और उसके गिरगों के हाथों कानपुर में अपनी जान गंवाने पर पूरे मुल्क में कोहराम मचा हुआ है, मगर मुल्क की गोदी मीडिया और अब आप इख्तिदार की ज़बान और किरदार का अंदाज़ा लगाइए। यही अगर कोई ऐसा शख्स होता और बदकिस्मती से उसके नाम के साथ सलीम और नदीम लगा होता तो फिर देखते मीडिया का जलवा और पुलिस एहलकारों का एक्शन। वो कोई बड़ा आतंकवादी होता और मुसलमान आतंकवादी होता और पुलिस उसकी आड़ में कानपुर के न जाने कितने घरों में तूफान मचा रही होती, कितने नौजवानों को उसका साथी बताकर इनकाउंटर किया गया होता, मुस्लिम महलों और घरों में मुजरिमों को पनाह देने के नाम पर आग लगाई गई होती, कितने नौजवानों के पास सिर्फ उनका मोबाइल नंबर होने की बुनियाद पर मुजरिम बनाया गया होता और उनको या तो मौत की घाट उतार दिया जाता या मुद्दतों के लिए जेल की सलाखों में डाला जाता। ना जाने किन किन मुल्कों और आतंकी संगठनों से उनके तार जोड़े जाते जिनका कभी उन्होंने नाम भी ना सुना होता। पूरी मुस्लिम कौम इसकी वजह से दहशत में मुब्तला कर दी होती। योगी जी पूरी मुस्लिम कौम के खिलाफ आग उगल रहे होते। 2-4 मुल्ला भी उनकी वजह से पूरी मुस्लिम कौम को गालियां देने और कोसने के लिए टीवी स्क्रीन पर बुला लिए होते। टीवी पर कहीं हल्ला बोल, कहीं मुकाबला, कहीं आमना सामना प्रोग्राम चल रहा होता। इंडिया टीवी भी किसी ऐसे सवाल करने वाले को पकड़ ले आया होता कि हम मानते हैं कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, मगर जो पकड़ा जाता है वो मुसलमान ही क्यों होता है और वो भी नहीं बख्शा जाता जिनके साथ उनकी तस्वीरें होती। गोदी मीडिया उनको ढूंढ ढूंढ कर गाती और खूब नए नए रिश्ते तलाश करती और जोड़ती। आज क्यों गोदी मीडिया का वो सर नहीं है? क्या सिर्फ इसलिए कि उसका नाम विकास दुबे है? कोई सलीम और नदीम नहीं है। आज सिर्फ वो एक सरफिरा गैंगस्टर और बदमाश है। इसे कहते हैं जर्नलिज्म, जानिबदारी। आज मुल्क के लिए ये सवाल भी बड़ा अहम और गौर तलब है। मक्का मस्जिद में धमाका हो तो मुसलमान पकड़ा जाए, अजमेर में हो तो मुसलमान का नाम आए, मोहरवली में धमाका हो तो मुस्लिम नौजवानों से जोड़ा जाए, मुल्क में कहीं कुछ हो जाए नाम नामी चोर बहादुर का आए। ये मिसले बहार में मशहूर है। ये सिलसिला कांग्रेस इक़्तिदार में भी था और अब जब से हुक्मरान जमात बरसरे इक़्तिदार है, बतौर ख़ास मुल्क में कहीं इस तरह की वारदातें क्यों नहीं हो रही हैं? ये घर उनके वालिद का था, आप चाहते तो उनके जायदाद को तबाह कर सकते थे। शीटर डबे की वालिदा का इजहार ख्याल। हफ्ते के रोज़ कानपुर में 8 पुलिस एहलकारों के कत्ल के मरकज़ी मुलजिम विकास दुबे की वालिदा पुलिस ने अपने बेटे को गोली मारकर हलाक करने की दरख्वास्त की, जिसके एक दिन बाद उन्होंने कहा कि पुलिस की हलाकत पर वो नाखुश हैं। सिरला देवी ने बताया कि कानपुर इंतज़ामिया ने जिस घर को मसमार किया था वो उसका आबाई घर था।
दुबे कानपुर इनकाउंटर मामले का मरकजी मुलजिम है, जिसमें हमला आवरों के एक ग्रुप ने जुमेरात की रात देर गए शहर में तारीख के शीटर दुबे को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक डीएसपी समेत 8 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। एक हफ्ते में 50 लोगों का कत्ल, कौन है जिम्मेदार? प्रियंका का योगी से सवाल। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से पूछा है कि गुज़िश्ता हफ्ते रियासत में जो 50 लोगों का कत्ल हुआ है, उसकी जवाबदेही किसकी है? कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर निशाना साधा है और उनसे सवाल किया है कि रियासत में गुज़िश्ता हफ्ते में जो 50 अफराद के कत्ल हुए हैं, उसकी जवाबदेही किसकी है? उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश जराइम के कुछ मामलों में पूरे मुल्क में टॉप पर है। वाज़ेह रहे कि 8 पुलिस वालों को शहीद करने वाला विकास दुबे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और अभी तक इसका कोई सुराग नहीं मिला है। विकास दुबे को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं, जैसे विकास दुबे ने लल्लन वाजपेयी के भाई पर जानलेवा हमला करवाया था और लल्लन वाजपेयी ने कई मर्तबा विकास दुबे के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। कानपुर इनकाउंटर में योगी आदित्यनाथ की ठोक देंगे पॉलिसी जिम्मेदार। कानपुर इनकाउंटर में 8 पुलिस एहलकारों की हलाकत के बाद AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की हुकूमत की ठोक देंगे वाली पॉलिसी पर सख्त तनकीद की। कानपुर इनकाउंटर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी वजीर आला योगी आदित्यनाथ पर आयद होती है। आंध्र प्रदेश में बेघर अफराद के लिए अराजी के पट्टे देने का प्रोग्राम मुलतवी, कोरोना वायरस के बढ़ते मरीज अहम वजह, 15 अगस्त को देने का ऐलान। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने 8 जुलाई को जो साबिका वजीर आला आंध्र प्रदेश डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की बरसी होती है, रियासत भर में लाखों बेघर अफराद को मकानों की तामीर के लिए अराजी के पट्टे देने का ऐलान किया था। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी थीं कि कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे को देखते हुए इसे 15 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। अराजी के पट्टों की तकसीम की सूरत में 1000 बेघर अफराद एक साथ जमा होने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा रहता है, जिसे देखते हुए इसे मुलतवी कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों में ज़बरदस्त इजाफा, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1322 नए मुसद्दिक़ा मरीज, तादाद बढ़कर 20,019 हो गई। रियासत आंध्र प्रदेश ज़िला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, रियासती हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के तदारुक के लिए कई इक़दामात किए जा रहे हैं। इसके बावजूद रियासत में कोरोना वायरस के मरीजों में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1322 नए मरीज मुसद्दिक़ा पाए गए हैं, जिससे अब तक यह तादाद बढ़कर 20,019 हो चुकी है। ताहाल 8,920 मरीज मुकम्मल सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब तक 239 मरीजों की मौत वाक़ हो चुकी है। 10,860 मरीज रियासत की मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में ज़ेर इलाज हैं। लॉकडाउन हटाने के बाद से नए मामलों में इजाफा होता जा रहा है। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश YS जगन मोहन रेड्डी का ज़िला कड़पे का 2 रोज़ा दौरा। जगन मोहन रेड्डी 7 जून को ताड़ेपल्ली से बजरिए स्पेशल प्लेन दोपहर 3:30 को रवाना होकर कड़पा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो बजरिए हेलीकॉप्टर अपने आबाई हल्के पुलिवेंदला के इडुपुलपाया पहुंचेंगे। यहीं पर रात गुजारने के बाद 8 जून की सुबह अपने वालिद साबिका वज़ीर आला आंध्र प्रदेश डॉक्टर राजशेखर रेड्डी की समाधि पहुंचकर उन्हें खराज अकीदत पेश करेंगे। 8 जुलाई डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की बरसी है। हर साल जगन मोहन रेड्डी 8 जुलाई को
इडुपुल पाया में अपने वालिद की समाधि जाकर उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। इसके बाद वो YSR सर्किल RK विलेज में वाक़े RGUKT पहुंचकर नई इमारतों का इफ्तिताह करेंगे और इसी मकाम पर 3 मेगावाट सोलार प्लानट का संग बुनियाद भी रखेंगे। वहां से वो इडुपुल पाया में वाक़े अपने मकान के लिए रवाना हो जाएंगे। सेपहर बजरिए हेलीकॉप्टर कड़पा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से खुसूसी तैयारी के जरिए ताड़ेपल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जिला SP कड़पा KKN अनबुराजन ने आज अपने दफ्तर से स्पंदना प्रोग्राम का बजरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस इनेकाद किया। शिकायत कुनिंदकान से रास्त बातचीत की। आज जिला SP कड़पा अनबुराजन ने अपने दफ्तर से बजरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस जिला भर के शिकायत कुनिंदगान से रास्त बात करके उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की और इसके हल के लिए मुताल्लिका पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी। वाज़ेह रहे कि हर पीर के दिन जिला SP स्पंदना प्रोग्राम के ज़रिए से आवाम से रास्त मुलाकात करके उनकी शिकायत पर ज़रूरी कार्रवाई करते हैं। सारे ज़िले के आवाम अपने मसाइल और शिकायतें लेकर उनसे मुलाकात को आते हैं। अब कोरोना वायरस की वजह से आवाम को ज़िला के दूर दराज इलाकों से यहाँ आना मुश्किल है, जिसे देखते हुए SP अनबुराजन ने बजरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस आवाम की शिकायतों की समाअत का फ़ैसला किया। हर पीर को ज़िला के आवाम अपने अपने इलाकों में वाक़े ग्राम सचिवालयम और वार्ड सचिवालयम पहुँचकर अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, जिन्हें रास्त तरीके से SP बजरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस खिताब करके उनके मसाइल को सुनकर मुताल्लिका पुलिस ओहदेदारों को ज़रूरी कार्रवाई की हिदायत जारी करते हैं। ज़िला SP अनबुराजन ने ज़िला के अवाम से इस सहूलत से इस्तेफ़ादा करने की ख्वाहिश की है। ज़िला कड़पा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 96 नए मरीज़ मुसद्दिक़ा, तादाद बढ़कर 1480 हो गई। ज़िला कड़पा में कोरोना वायरस के मरीजों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 96 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जिससे यह तादाद बढ़कर 1481 हो चुकी है। आज 43 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज भी हो गए। अब तक जुमला 528 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज ज़िला में कोरोना मरीजों की तादाद इस तरह है: कड़पा टाउन में 9, पुरडू में 18, दुबूर में 22, पुलिवेंदला में 7, राजमपेट में 7, बीमठम में 1, सीके दिन्ने में 3, नंदलूर में 3, लिंगारा में 1, यरागुंटला में 6, सिमदाद्रीपुरम में 1, जम्मल मुड़ुग में 1, वेमपल्ली में 1, राजीवपाल्यम में 1, चिटवेल में 2, सिद्धौट में 1, रामापुरम में 1, चापाड़ू में 1, खाजीपेट में 1, टीसुंडुपल्ली में 1, रेलवे कोडूर में 4, मैतकूर में 3, बदवेल में 1। इस तरह से एक दिन में जुमला 96 केस मुसद्दिक़ा पाए गए हैं। ज़िला कलेक्टर कड़पा हरी किरण ने आवाम से एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने पर जोर दिया है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के लिए। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बख़ैर।